Good morning, students. We had learned about digestion and absorption, and due to digestion and absorption, today we will learn about digestive system of human or mammals. Okay. As we learn what is digestive system, all those organs of body taking part in the process of nutrition are called as digestive or nutritional organ, and all these organs together form a system known as digestive system. ओके हम जो भी फूड अचीव करते हैं बॉडी के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, उसमें हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स पार्ट लेते हैं उनको हम डाइजेस्टिव ऑर्गन्स बोलते हैं, और पूरे जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उनसे मिलकर एक सिस्टम बनता है विच इज़ कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स. ठीक है, ये जो है एलिमेंट्री कैनाल और इससे रिलेटेड जो ग्लैंड्स होते हैं जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करते हैं, उनसे मिलकर ये पूरा सिस्टम जो है वो बना होता है. The elementary canal in digestive system the elementary canal in general start from mouth and terminates into anus. Okay, with different intermediate parts like buccal cavity and pharynx, esophagus, stomach, intestine, small intestine, and large intestine, and then rectum. The various glands associated to the alimentary canal are either located into its wall or placed separately and pour their secretion into it through ducts. For example, here we see salivary glands and pancreas, liver. Okay, and however the digestive system differs considerably in different animals, though there is basic similarities in their functions and structure. Okay, the digestive system of vertebrate like man we have studied, we will study it. Okay, and when we learn about digestive system of human or mammal, यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है. इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल or digestive tract which is start in mouth and end in anus, and some digestive glands like salivary glands, pancreas and liver, as we already discussed about it. Okay, so the alimentary canal of human is long tube of about 8 to 10 meter long length. अगर आप पूरे एलिमेंट्री कैनाल को सीधा कर दें तो उसकी जो लेंथ है वो 8 to 10 मीटर्स लॉन्ग होती है. एंड द बकल इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू बकल कैविटी, जहाँ पर हम भोजन को, फूड को चीव करते हैं, इट इज़ कॉल्ड बकल कैविटी. एंड जो इसका पीछे का कीप लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ कॉल्ड फेरिंग्स. एंड फिर पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे माउथ के चीव किए हुए फूड को कहाँ ले जाती है, स्टमक तक लेकर जाती है, इट इज़ कॉल्ड ईसोफेगस. एंड अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, बिग स्ट्रक्चर वेयर द फूड इज rested in some hours, it is called stomach. And then it goes to small intestine, which is the longest digestive organ, and then it goes to large intestine where it spoiled and rest for some time, and then the excretory material are excreted by anus.
Okay. And first we will talk about buccal cavity and our oral cavity. Oral cavity opens to the exterior by slit like mouth. It is bounded by two lips, upper lips and lower lips, the cheeks from side walls, and palate from its roof. Palate is differentiated into two parts: the anterior hard palate supported by two maxillae and two palatine bones. These help in retaining food in the buccal cavity and proper mastication. Okay, the posterior soft palate is formed of muscles arranged in the form of an arch, and it helps in the directing food towards esophagus. Okay, the opening in the arch leads into esopharynx and is named fauce. From the posterior border of the arch, a cone-shaped uvula or velum palate hangs down between buccal cavity and pharynx like a curtain. Okay, जब आप माउथ खोलते हो, है ना, जहाँ पर अपर जॉ एंड लोअर जॉ होते हैं और इसमें टीथ लगे हुए होते हैं, अपर जॉ का जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है वो हार्ड होता है एंड इट इज़ कॉल्ड हार्ड पैलेट, एंड जो पीछे वाला जो भाग होता है जहाँ से हम फूड को अंदर निगलते हैं वो भाग जो है वो सॉफ्ट होता है एंड इट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट. और यहीं पर जो है वो सैलिवरी ग्लैंड्स डक्ट के थ्रू यहाँ पर खुलते हैं. जब आप डॉक्टर्स जो बोलते हैं माउथ खोलो और उसमें टॉर्च के लाइट डालते हैं तो एक लटकती हुई सी संरचना दिखती है एंड इट इज़ कॉल्ड यूवुला और वेलम पैलेट. ओके, यूवुला क्लोजेस द इंटरनल nares during swallowing of food bowls. These are two fleshy arches, one on either side of uvula, and between them in present an almond shaped palatine tonsils. ओके, यूवुला के दोनों ओर आमंड के शेप के टॉन्सिल्स होते हैं. टॉन्सिल्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा. एंड द बकल कैविटी इज लाइंड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन, टीथ, टंग एंड टॉन्सिल्स आर प्रेजेंट इन इट. ओके, अब अगर हम बात करें टीथ की, तो हमारे जो माउथ का अपर जो है एंड लोअर जो है वहाँ पर गम्स के थ्रू टीथ होते हैं. सो टीथ डेवलप बाई ossification in the mucous membrane of buccal cavity along the rigid of the jaw. अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें ह्यूमन बींग्स के टीथ की, तो मोस्ट ऑफ द मेमेलियन टीथ आर थिकोडेंट, फाउंड एम्बेडेड इन द जॉ सॉकेट. ये जॉ में सॉकेट के रूप में फिक्स होते हैं. एंड इस प्रकार का जो टीथ होता है थिकोडेंट कहलाता है. एंड डाइफोडेंट है ना, डेवलप्ड ट्वाइस, दो बार ये जो है वो डेवलप होते हैं. वन टाइम ये जब छोटे बच्चे रहते हैं और ये कुछ सालों के बाद निकल जाते हैं और ये जो है वो मिल्क टीथ कहलाते हैं. एंड देन जो टीथ आते हैं वो फिर लाइफ लॉन्ग रहते हैं, जो कि परमानेंट टीथ कहलाते हैं. तो दो बार ये जो है वो निकलते हैं. सो इट इज़ कॉल्ड डाइफोडोंट. 20 डेसिडुअस टीथ, मिल्क टीथ डेवलप फर्स्ट. जब बच्चों को दूध वाला मिल्क टीथ निकलता है तो ये इनके जो नंबर ऑफ टीथ होते हैं 20 होते हैं. एंड दीज आर रिप्लेस्ड लेटर ऑन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 13 ईयर्स. एंड देन 32 परमानेंट टीथ जो है वो ग्रो होते हैं. और ये जो है अपर जॉ में 16 एंड लोअर जॉ में 16 इसका क्वांटिटी होती है. ओके, एंड मेमेलियन टीथ आर हेट्रोडोंट
वेरियस शेप साइज एंड स्ट्रक्चर, अलग अलग शेप साइज और स्ट्रक्चर के होते हैं जो कि हेट्रोडोंट कहलाते हैं। तो ये शेप और साइज क्या होते हैं? इंसीजर और इंसीजर, दीज आर चेसल शेप्ड विथ शार्प कटिंग एजेस आल्सो कॉल्ड कटिंग टीथ। शार्प इसका होता है, नुकीला सिरा होता है जो कि हार्ड चीज़ों को काटने के लिए होता है, इसलिए इनको इंसीजर कहा जाता है। और कैनाइन, दीज आर पॉइंटेड डेजर शेप्ड टीथ फॉर टीयरिंग ऑफ फूड आल्सो कॉल्ड टीयरिंग टीथ। ओके, एंड देन प्रीमोलर which is indicated by P, these are broad, strong, having crush for crushing of food and are also called grinding or cheeks teeth. Okay, and then molar teeth which is indicated by capital M, and last molar in human beings are called wisdom teeth. अकल दाढ़ बोलते हैं ना, जो पीछे की तरफ निकलता है ना, और ये जो है वो बहुत बाद में निकलता है, लाइफ के 32 ईयर तक निकलता है। विच आर वेस्टिजियल इन ह्यूमन बींग्स। सो ह्यूमन बींग्स में जो मिल्क टीथ है उनकी संख्या होती है 20, एंड जो परमानेंट टीथ होता है उनका नंबर ऑफ टीथ होते हैं 32, एंड 16 टीथ आर सिचुएटेड इन अपर जॉ एंड 16 teeth are situated in lower jaw. Okay, and the formula of human dental formula होता है। डेंटल फार्मूला में जो परमानेंट आपका जो शिशु अवस्था में, चाइल्डहुड अवस्था में जो इसका होता है, इसका फार्मूला होता है डेंटल फार्मूला DF इज इक्वल टू I इंसीजर, C कैनाइन, P प्रीमोलर एंड मोलर, अपर जॉ एंड देन लोअर जॉ इंटू 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर इंसीजर हो जाएगा आपका परमानेंट टीथ में 2 कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 एंड मोलर 3, 2 1 2 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 16/16 इज इक्वल टू हो गया 32। ये जो है वो डेंटल फार्मूला होता है परमानेंट टीथ का। ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, एंड नेक्स्ट डे जो है वो इसके आगे का पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।